दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ बैल ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਪਰ बैल ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਕਸ਼ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਪਕਸ਼ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। एक ਕੰਨ ਪੂਰਾ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਕੰਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2-4 ਗਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, बैल रख ले और ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਠਾਕੁਰ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ, ਉਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਇਓ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੀਡੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਟ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੌਕੀ ਮਨਿਆਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਡੰਗਰ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਹੈ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਡਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਪੂਰਾ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਗਾਈਆਂ ਪਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਿਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਛੱਡਣੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਟੈਗ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਰੂਹ ਕੰਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਣੇ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਹਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ बैल ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ बैल ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਪਰ बैल ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਕਸ਼ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਪਕਸ਼ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਲੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2-4 ਗਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, बैल रख ले और ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏ ਘੈਂਟ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਲਾਈਫ। ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਨਾ 6 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ थे। ਔਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜੱਗੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੰਮੀ।
और तुम खुद सोचो कि असी दूरों देख के ना इस नाल सड़क लगी है तो अगर कोई गड्डी निकला वो नहीं एक देख के कह देना कि हाँ यार पता नहीं किदां दी गौशाला है, केयर होंदी नहीं है, ऐदी जानवर सट्टे होया है। भाजी इतना रुक के देखो, रिस्पोंसिबिलिटी का पता लगता है बंदे को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जेड़ा पशु बिच रहिंदा है ना उन्होंने आप पशु बनना पैंदा पशु पालने वास्ते। और इन्हां दी सेवा नूं मैं सच्ची मेरा दिल कुछ नहीं था। लोग कहते ना पता नहीं यार क्या पैसा कमा रहे, कितने तक क्या इन्हें जोड़िया, किदा जोड़िया, एने पशु रख ले और पता नहीं क्या क्या होने करेगा। कुछ नहीं था, जंगल है ये खाली। और वो भी अपनी बदौलत इन्हें लीज पर लिया किसी ते ताकि मैं अपने कुछ पशु इतना रख सका जो आवारा इधर उधर मरिया करते, जिन्होंने कोई देखा नहीं करता, जिन्हें कोई सूद लिया करता, उन्होंने करके इन्हीं साल का 50,000 के उपर लीज पर जमीन लैके वो बाद इतना काम चालू किया है। कोई जिला इन्हें स्टार्ट किया तो पल्लों ही सब कुछ करते रहे। और पल्लों करना मैनू पता है क्या होंदा है। इंडियन हेल्पिंग हैंड असी फस्ट टाइम जिला स्टार्ट की थी ना, लोग हसते थे, उदा ही इन्हों पर भी हसते। जिला भी कोई बंदा सिस्टम कोई भी चेंजेस लैके आने की कोशिश करता या प्रकृति कोई भी चेंजेस लैके आने की कोशिश करता किसी चीज़ के भले वास्ते, उस वे लोग हसते हैं, कहते यार ले दस इन्हों कोई काम ही नहीं है, यही मिले इन्हों। और चार गल्लां चार लोगों बैठ के बढ़ाते हैं। पर मैंने इन्ना यकीन है कि जिला वो बंदा सफलता की तरफ बढ़ता है ना, जिला लोग उसका साथ देने लगते हैं तो वो चार बंदे भी मुड़का आते हैं, फिर कहते यार नहीं यार असीं तां तेरे नाल है। भरा ये काम की कोई रीस नहीं है, ये उनकी सेवा। तुसी डॉक्टर बन सकते हैं, तुसी मिनिस्टर बन सकते हैं, तुसी इंजीनियर बन सकते हैं, तुसी जिंदगी च कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इंसान बनना। और इंसान अगर तुसी बन गए एक बारी ना तो ये समझ लो कि तुहाडी इंसानियत सफल है। रब ने तुहानू 84 लाख जूनिया के बाद जी जूनी च पाया ना, उस जूनी को किद्दां जीना है, उस जूनी का मतलब क्या है तुसीं समझ गए। अपने वास्ते सवेरे तो शाम तक रोटी तो डंगर भी जुड़ा लैंदा, लेकिन इंसान वो हुंदा है जिहड़ा उस चीज़ को समझे, बेजुबान जानवरों को समझे, प्रकृति को समझे। वी आर फादर ऑफ द नेचर यूनीवर्स। इस पूरे यूनीवर्स असी ही सबसे समझदार माने जाते हैं, क्योंकि पूरे यूनीवर्स को असी चलाते किसी ना किसी तरीके नाल। प्रकृति नाल खिलवाड़ भी असी करते, प्रकृति चेंजेस भी असी लेके आते हैं, और हर चीज़ के उपर पेरेंट्स मन्ने जाते हैं असी। और जब तुसी ही इन्हां चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते, उल्टा इन्हों तुसी साड़िया करते, फिर फायदा क्या यार तुहाडा इंसान होने का। कृष्ण गोपाल भाई जिदा के बंदियां ने अपनी रिस्पोंसिबिलिटी समझी और ये की इस गौशाला को खड़ा करने की कोशिश कराया करते एक छोटे जे पिंड। तुहानू पता भी नहीं होना तुहाडे 19 डिस्ट्रिक्ट विच है। अज इन्हों काफ़ी हेल्प की जरूरत है, देखा जाए तो जोड़ा स्टैप ही नहीं चुकया है। इत्थे तक कि नंदी गण ही नहीं इकट्ठे किए, गौ माता इकट्ठी की है, बल्कि मोस्टली गौशाला देखा जाता गौ माता ही होंदियां हैं। इन्होंने जोड़ा स्टैप चुकया वो वास्ते कल्ले तो नहीं सफ़र शुरू करता पा, लेकिन तुहाडे मेरे सहयोग के बिना सर एक किती नहीं जा सकते। मुश्किल आनियां है, कई बार थल्ले लगना नहीं, कई बार ऊपर भी उठूंगे, लेकिन अगर तुहाडा मेरा सही सहयोग मिलिया तो कम से कम एक वधिया मिसाल कायम होनी है 19 डिस्ट्रिक्ट। और मुश्किल हला भी नहीं, क्या मुश्किल तुसीं झेलियां स्टार्ट करते वेले। वंदे गौ मातरम, जय श्री राम, जय गौ माता की। 6 मार्च 2021 को ये शुरुआत हमने की थी एक छोटी सी 3 गाय एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसके उपरांत कदम बढ़ते गए, धीरे धीरे लोगों को बीच हम जाते रहे, संपर्क होता रहा। और सुहारी पंचायत और ग्राम पंचायत जवेड़ के जितने भी बेसहारा गोवंश था उन्हें ला कर के यहाँ आश्रय देने का कार्य हमने किया। जितने भी वहाँ चाहे वो नंदी थे या वो गाय थी, जिनमें बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और अच्छे बढ़िया पशु भी थे हमारे पास। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित पशु भी आए हैं, कई जख्मी हालात में आए हैं, कई बीमार आए हैं। हर तरह की जो गोवंश है हमारे पास आया, उसकी देखभाल, उसकी दवाइयाँ, उसकी हर तरह की व्यवस्था उसके लिए धीरे धीरे कर पाना हमें शुरुआती तौर पे काफ़ी असंभव था। लेकिन जिस प्रकार सहयोग अभी हमारे प्रिंस ठाकुर भाई जी आए हैं और कई सहयोगी भाई आते हैं, महेशपुरी बड़े भाई उन्ना से हैं, उनकी टीम है उनके साथ, जिन्होंने हमें शेड में सहयोग किया है, शेड वगैरह और खुरलियों में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे और भी वक्त आगे आ रहे हैं। अभी हमें पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है, जो पानी के लिए हमें यहाँ बड़ा जो पक्का खड्डा है वो बनाया जा सके। तूड़ी का शेड बड़ा बनना है हमें, जिसमें कम से कम 80-90 क्वांटल जो 100 क्वांटल तूड़ी है जिसके अंदर रखी जा सके। टोका मशीन की ज़रूरत है, जो हरा घास बाहर से आता है उसे कुतर करके जो है काट करके इनकी तूड़ी में घास में मिलाकर इन्हें डाला जाए।
तो ऐसे अभी छोटी छोटी ये मुश्किलें हैं। इसके उपरांत जैसे जैसे हम तो ये चाहते हैं कि जितना भी बेसहारा गोवंश हमारे ज़िला उन्ना में या हिमाचल में है, अगर तमाम ज़िला उन्ना निवासियों का या प्रदेशवासियों का हमें साथ मिले तो हमारा यह संकल्प है कि प्रदेश में या ज़िला में एक भी बेसहारा गोवंश नहीं होगा। साथियों, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं इस गौशाला के लिए, जीव कल्याण गौशाला, यूनिट ऑफ हैंड्रो, चौकी मनियार कैंट, तो आप हमारा पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, पेपल नंबर नोट कर सकते हैं 9805283477। और जो हमारे बड़े भाई प्रिंस ठाकुर जी के प्रिय मित्र हैं, मैं चाहता हूं वो इनके साथ यहाँ आएँ और आकर के यहाँ की पूरे हालात देखें, उन्हें क्या उचित लगता है, वो क्या व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं, वो इनके साथ जरूर आएँ। जय गौ माता की, बंदे गौ मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। देखो, सब तो वधिया पुण्य मन्निया जाता है, सब तो वधिया पुण्य मन्निया जाता है किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भुखे को रोटी खिलाना। और बाकी चलो मुद्दे हौली हौली सॉर्ट आउट होंदे रहेंगे। जो अगे तो अगे आधुनिक जरूरत है वो तो असी सारे ने मिलकर हौली हौली करी लेनी है, पर सब तो बड़ी मेन प्रॉब्लम इस वेले है चारा पानी। उहदे वास्ते इत्थे व्यवस्था होना बहुत जरूरी है सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ लगती है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ शांति मिलती है। सोचो वो शांति ये बेजुबान जिले पशुओं को मिलनी है कि इन्होंने ढंग नाल चारा मिल जाए, पानी मिल जाए पीने को, फिर क्या गल ही क्या रहनी है। फिर तो बस तुहाडे सारिਆਂ ਤੇ यही विनती है कि तुहाडे भी खुशियां दे पल हुंदे है, तुसी भी किसी ना किसी सक्सैस कायम करते हैं, सक्सैस लेंदे है। तो भी कई बार इदा लगता है कि यार अज मेरे नाल मैं खुश है, मेरा दिल अज मैं किसी वास्ते कुछ करा कि कोई होर खुश हो जाए। तो सब तो बढ़िया ऑप्शनस रहना है उहदे विच कि अगर तुसी किसी बेजुबान की हेल्प करो। भरा का कॉन्टैक्ट नंबर दिता होया वीडियो विच, बाकी इन्होंने अपनी अकाउंट डिटेल तो दे दी है, जो भी इन्हों की NGO दी है। ज़्यादा नहीं मैं कहता तुहाडे, लेकिन जिन्नी तुहाडी श्रद्धा होवे, जिन्ना तुसी कर पाओ, चाहे फाइनैशियली करो, चाहे फाइनैशियली नहीं कर सकते, तो लगता है कि अपने कोई यार मित्र है जो अगे कर सकते हैं, गो भगत है, उन्होंने फॉरवर्ड करो, उन्होंने दसो, और हमेशा ये चीज़ा फॉरवर्ड जरूर कराया करो। और तुहाडे रियली आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अपनी खुशी वास्ते या अपने किसी बंदे वास्ते अगे अपने परिवार वास्ते तुसीं अरदास के रूप से सोचते कि मैं सेवा देनी की यार, ये तो बड़ी सेवा होर कित्थे होनी है। तो सारे दे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सारे अगे आओ और एक इस नेक काम में अपना सहयोग दो, अगे तो अगे जुड़ो। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।